چاندی کی صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماسا کی، وہ بھی ایک اننگ کی، وہ بھی چھنگلی کے بغل والی انگلی میں، نہ اس میں کہیں نہیں کرتے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سنت اس میں نگینا ہے کہ نہیں ہے؟ میری لے لیجیے دوستوں، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اب میری وجہ سے سنت ادا کریں گے، مجھے بھی ثواب ملے گا. تو دوستوں، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری چچی، میری بیٹی فاطمہ کے شکم میں ایک بچہ ہے، وہ بچہ کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والا ہے. اس خواب کی یہی تعبیر ہے. اب آپ کی چچی بھی مسکرانے لگی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری چچی جا کے دیکھ کے آؤ کہ بچہ آیا کہ نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ام الفضل آپ کی بارگاہ سے چلی، فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائیں، دروازے میں جاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، ذکر الہی کی آواز آتی ہے. جب اندر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ فاطمہ ایک مصلی میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ذکر الہی کر رہی ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. اللہ اکبر. اللہ کی نبی کی چچی عرض کرتی ہے کہ اے فاطمہ بیٹی، ذرا یہ بتا کیا تیرے شکم میں درد ہے؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں. اے بیٹی، کیا تیرے کمر میں درد ہے؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں. اے بیٹی، کیا تیرا سر بھاری بھاری ہے؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں. اے بیٹی، تیرا پیر کیا بھاری بھاری ہے؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں. فاطمہ عرض کرتی ہے کہ میری دادی، نہ میرے سر میں درد ہے، نہ کمر میں درد ہے، نہ شکم میں درد ہے، نہ میرا پیر بھاری ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی تشریف لاتی ہے. پھر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کہتی ہے یا رسول اللہ، نہ فاطمہ کا شکم درد کر رہا ہے، نہ سر درد کر رہا ہے، نہ کمر درد کر رہا ہے، نہ پیر درد کر رہا ہے، نہ بدن میں کوئی جرمش ہے، نہیں بدن کے کسی حصے میں درد ہے. کیسے مان لیا جائے کہ بچہ ابھی آنے والا ہے؟ اتنی جماعت کی چچی کہتی ہے تو مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ اے میری چچی، بچہ آنے والا نہیں بلکہ آ گیا ہے. سننے سنانے کا ماحول بنا دیا، موڈ بن گیا تو بڑی اچھی تقریر کر کے چلا جاؤں گا. آپ پرسوں نہیں برسوں تک یاد کریں گے. اور یقین مانیے ابھی کچھ دیر کے بعد جب وہابی، صلح کلی، رافضی، قادیانی، چکڑالوی، گاندوی، محمدی، بریلی شریف کے جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے سڑے گڑے ظالم دشمن ہیں، جب ان کا اسی اسٹیج سے جنازہ نکلنا شروع ہوگا تو آپ کہیں کہ حقیقت میں حضرت نے کہا تھا. اور دوستوں، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، تمام دنیا کے وہابیوں کو میرا چیلنج ہے، تمام دنیا کے بریلی شریف کے جتنے مخالف دشمن، لنگڑے، کانے، کلوا، لنگڑا، رجوا جتنے بھی ہیں، سب کو میرا چیلنج ہے کہ اگر ان کی ماں دودھ پلائی ہوگی، تیل بھی حوالہ غلط ثابت کر دیں گے تو 5 لاکھ کا انعام دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میری 22 لاکھ کی گاڑی باہر کھڑی ہے وہ بھی دے دوں گا. کیا بات ہے، بہت اچھا حضور. غلط ثابت نہ کر پائیں. ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ بھی کریے گا، نوٹ کرنے والے نوٹ بھی کریے گا. اگر غلط ثابت نہ کر پائے تو ہمارا ان سے زمین، جگہ، دکان، مکان کا جھگڑا نہیں ہے، عقیدے کا جھگڑا ہے. وہ آ کر کے حسین کے محفل میں توبہ کر لے اور کہتے آج سے میں حسینی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ.
کیا بات ہے ماشاءاللہ. انہیں ان سے انعام نہیں چاہیے، بس یہی چاہیے کہ جو میرے بھائی نہیں جانتے ہیں، بھولے بھٹکے جو غلط راہ میں چل دیے ہیں، وہ سیدھی راستے پہ آ جائیں. بس ان سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ جھگڑے کی فساد ہی ختم ہو جائے. خدا کی قسم اگر پورے دنیا میں حسینی ہو جائے، سنی بن جائے، بریلوی بن جائے تو جھگڑا ہی نہ ہو. کیا بات ہے، بہت اچھا. ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ جھگڑا ختم ہو جائے. دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، جب آپ کی چچی کہتی ہے یا رسول اللہ، نہ بی فاطمہ کا شکم درد کر رہا ہے، نہ سر درد کر رہا ہے، نہ کمر درد کر رہا ہے، نہ بدن درد کر رہا ہے، نہ پیر درد کر رہا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری چچی، فاطمہ کا نور نظر آ گیا ہے، لخت جگر آ گیا ہے، میرے دل کا ٹکڑا آ گیا ہے. آپ کی چچی کہتی ہے یا رسول اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ذرا میری چچی جان کے دیکھ کر آؤ. جب آپ کی چچی ام الفضل تشریف لے جاتی ہے فاطمہ خاتون جنت کے مکان میں، جب دروازے میں جاتی ہے، نظر ڈال کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اگلی بار تو قرآن نظر آیا تھا، اس بار قرآن کی تفسیر نظر آ رہا ہے، اس بار قرآن کی جان نظر آ رہا ہے، اس بار کعبہ کی عظمت نظر آ رہا ہے، اسلام کی جان نظر آ رہا ہے. اور مجھے کہنے دیا جائے اس بار مصطفیٰ کا عکس نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ کی چچی کہتی ہے بیٹی فاطمہ، یہ بچہ کس کا ہے؟ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے کہ یہ میری دادی، یہ میرا بچہ ہے، میرے شکم سے پیدا ہوا ہے. آپ کی چچی حیران و پریشان ہو جاتی ہے، حیران و پریشان ہو کر کے فاطمہ کے دامن کو دیکھتی ہے، کبھی آنچل کو دیکھتی ہے، کبھی کپڑے کو دیکھتی ہے، جس مسلح میں بیٹھی تھی، جس چادر میں بیٹھی تھی اس چادر کو دیکھتی ہے، کبھی در و دیوار کو دیکھتی ہے، کبھی زمین کو دیکھتی ہے، کبھی آگے دیکھتی ہے، کبھی پیچھے دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے. کچھ نظر نہ آیا تو سبحان اللہ کے رسول کی چچی کہتی ہے اے بیٹی فاطمہ، بچہ پیدا ہونے سے پہلے شکم درد کرتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے سر درد کرتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے کمر درد کرتا ہے، بچے کی پیدائش ہونے سے پہلے عورت کا بدن درد کرتا ہے. پانی کے قطرے گرتے ہیں، پانی کے پھوارے گرتے ہیں، خون کی کچھ چھینٹے گرتے ہیں. اے فاطمہ بیٹی، ذرا یہ تو بتا، نہ تیرا سکم درد ہوا، نہ بدن درد ہوا، نہ پیر درد کیا، نہ کمر درد کیا، نہ پانی کے قطرے گرے، نہ خون کے پھوارے گرے. اے بیٹی تیرا بستر بھی گیلا نہیں ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ جن کا عقیدہ کسی نالے میں بٹا ہو وہ کیا جواب دیں گے؟ جن کا عقیدہ کسی نالے میں سڑا گڑا پڑا ہو اور یہ جواب دیا تو بڑی کئی امام ہے. بچہ بچہ نور سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. یا حسین، یا حسین. یا حسین، یا حسین، مشرق اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. بہت اچھے حضور، ماشاءاللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. کیا بات ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یعنی سبحان اللہ، ماشاءاللہ. واقعہ مدینہ میں ہو رہا ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی سے پکار رہے ہیں کہ حسین بھی پاک، حسین کی ماں فاطمہ بھی پاک، علی بھی پاک، اور علی جہاں پیدا ہوا وہ کعبہ بھی پاک. کیا بات سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. بے شک حسین کا پورا گھرانہ پاک. حق ہے، حق ہے. اور ایسا ہی نہیں ہے
इमाम हुसैन के मानने वाले भी बेशक 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 अगर पाक ना होते तो महफिल कैसे सजाते। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हजरत ये बताइए वहाबी देवबंदी सुलाकुल्ली की इमाम हुसैन के नाम पे महफिल नहीं सजाता। तो मैंने कहा ये बताओ नापाकी के हालत में कभी किसी को मस्जिद में जाते हुए देखा? तो मैं कहा अगर आदमी नापाक हो तो मस्जिद के अंदर न जाए, और अगर अकीदा नापाक हो तो हुसैन की महफिल न समझ लेना। जो मस्जिद से जाने से रुक जाए समझ लेना वो नापाक हो, और जो इमाम हुसैन की महफिल न सजाए समझ लेना उसके अकीदा में लकवा मार दिया। उसके अकीदा में लकवा मार दिया। देखिए वहाबियों की एक किताब है, वहाबियों की एक किताब है, उस किताब का नाम है खिलाफते माविया यजीद, और लिखने वाला मौलवी बरेली का नहीं है, बगदाद और कलियर बहराइच का नहीं है, बल्कि इन देवबंदियों का पेशवा महमूद अब्बासी, महमूद अब्बासी है। अपनी किताब में लिखता है अगर इमाम हुसैन करबला से बच जाते, बचकर अगर निकल जाते तो उनको कत्ल करना वाजिब होता। वहाबियों का मौलवी कह रहा है, देवबंदियों का मौलवी कह रहा है, ए नदवा वाले, ए थाना भवन वाले, ए सहारनपुर वाले, दुनिया के तमाम वहाबियों को मेरा चैलेंज है, अगर ये मेरी बात झूठी निकल जाए तो 5 लाख का इनाम लेगा। क्या बात। महमूद अब्बासी लिखता है अपनी किताब में कि अगर हुसैन करबला से बच जाते तो उनका कत्ल करना वाजिब होता। मेरे माअल्लाह ऐसा अकीदा रखने वाले मौलवी पे थूको, और जो ऐसे मौलवी पे अकीदा रखते हैं उन पे भोंको। वाह क्या बात है। यानी अगर आप काट ना सके तो डांटिए जरूर। कभी कभी कुछ लोग भोंकने से भाग जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग डांटने से सुधर जाते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, वहाबियों का ये अकीदा है, वहाबियों का ये अकीदा है, और आज वहाबी यही अपने पेशवाओं के रविश पर है, अपने पेशवाओं के तरीके पर है। जब मुहर्रम का महीना आता है तो मेरा ख्याल ये कहता है कि सारे वहाबी इकट्ठा होते होंगे और कहते होंगे कि मेरे आका यजीद हम करबला में नहीं थे, वरना तुमने तुम जैसे पानी बंद किया था हम भी पानी बंद करते, हम भी खाना बंद कर देते, हम भी दाना बंद कर देते, हम भी पानी बंद कर देते, हम भी भूखा प्यासा हुसैन को शहीद करते। ए यजीदियों, जिस तरह तुमने अब्बास को शहीद किया था हम भी करते, जिस तरह कासिम को लूटा था हम भी लूटते, जिस तरह अब्बास का बाजू काटा था हम भी काटते। ये वहाबी कहते हैं कि अगर मैं करबला में होता तो हम भी यही करते, लेकिन करबला में नहीं है तो क्या हुआ? हिंदुस्तान में है तो मुहर्रम का खिचड़ा बंद करेंगे, हिंदुस्तान में है तो मिलाद बंद करेंगे, हिंदुस्तान में है तो फातिहा बंद करेंगे, हिंदुस्तान में है तो मजारों से रोकेंगे, हिंदुस्तान में है तो सलाम पढ़ने से रोकेंगे, हिंदुस्तान में है मुहर्रम के खिचड़ा और बिरयानी खाने से रोकेंगे, हिंदुस्तान में है तो इमाम हुसैन की महफिल से रोकेंगे। जब सुन्नी बरेलवियों ने देखा कि ये नदवा के छछूदर, ये वहाबी पिल्ले हुसैन की महफिल से रोक रहे हैं, खिचड़ा खाने से रोक रहे हैं, शरबत से रोक रहे हैं, सबील से रोक रहे हैं, फातिहा से रोक रहे हैं, तो सुन्नियों ने तड़प कर कहा ये मेरे आका हुसैन अगर हम करबला में होते तो अब्बास के तरह बात
पास अंगूठी है नहीं कि मैं आपको दूं, तो आप एक अपनी वाली उतार दीजिए, एक पकड़ लीजिए। एक पहली एक सुन्नत, यही है मिलाद महफिल जलसा जुलूस कराने से यही फायदा है। जो ना मालूम हो वो मालूम करके लोग शरीयत पे अमल करें। बड़ी लफाजी बातें करके बहुत तेज तर्रार हम बोल करके चले जाए, आपको कुछ समझ में ना आए, आपको कुछ ना मालूम हो तो क्या मतलब? जिन्हें रोजाना शहर में, हिंदुस्तान में, कोने कोने में, करिया करिया में, बस्ती बस्ती में जलसे हो रहे हैं, लेकिन जहाँ है लोग वहीं असल में क्या है? पूछ रहे हैं, ये भाई पूछ रहे हैं, क्या बताइए हमको। एक सवाल था आपसे गुजारिश था कि कुछ भाई लोग हैं कह रहे हैं कि ताजियम नहीं उठाना चाहिए, ये गलत है। माशाअल्लाह, यही चाहिए। जलसा कराइए तो अपना पैसा वसूलिए। जिस तरह आप अपने पैसों को लुटाते हैं, मौलवी पे मुर्गा रोटी जो है लुटाते हैं, तो अगर बड़े आसानी के साथ हा हो करके चला जाता है, और जहाँ आप हैं बस वही रहते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। जो आपको ना मालूम हो आप बेकायदे खड़े होकर कहिए, यार ये सवाल है, मेरा जवाब दीजिए, ये मेरा सवाल है, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। आदमी को नाले दो है कि नहीं? तो दोस्त अभी बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। इसमें भी मैं आज से में जब मेरी तकरीर हुई, मैं वहाँ 21 लाख का इनाम रखा था। एक मुफ्ती आया था मुनाजरे के लिए, भाग गया। यकीन मानिए हम अपनी जमात के मुफ्तियों के गुलाम, हम कुछ नहीं हैं, लेकिन बरेली वाले कुछ ना होते हुए भी बहुत बड़े होते। वाह वाह, क्या बात है, बरेली का नाम ही काफी है। आप कुछ ना रहिए और किसी के सामने से गुजर जाइए, यकीन मानिए लोग कहेंगे बरेली भी जा रहा है कि नहीं? बोलो भाई, अगर आए हदीस देखेगा लोग कहेंगे बरेली भी जा रहा है, वहाँ भी देखेगा लोग कहेंगे बरेली भी जा रहा है, कादियानी देखेगा लोग कहेंगे बरेली भी जा रहा है, और आप खुश भी होंगे। अगर कोई पूछे आप बरेली में, तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेली भी। लेकिन अगर कोई वहाबियों से पूछता है तो सिर्फ सुन्नी जना कहते देखो वहाबी कहे भी ना, खाली आपस में खुशखुशाल है, यानी झूठ ही और चला रहे, वहाबी सोचेगा बस हमको वहाबी कहना, यानी वो खुद जानता है कि वहाबी नाम ही बनता है। कुछ आप ना कहो, फिर भी अगर उससे पूछो वहाबी हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। कभी नहीं कहेगा कि हम वहाबी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी बरेलवी है, लेकिन वहाबी कभी नहीं कहेगा कि हम वहाबी सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। भी जानता है वहाबी का मर्ज, अब धीरे धीरे सब लोगों को मालूम हो गया कि मर्ज की चीज थी। वहाबी का मर्ज सिर्फ और सिर्फ रजा के डंडे से दूर है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगर जहाँ रजा का डंडा नहीं, वहाँ वहाबियत होगी, सुराकुल्लियत होगी, और जहाँ रजा का डंडा आ जाए, तो शरिया का सिर्फ नाम आ जाए, लेकिन माने वहाबी आई नहीं, समझ जाएगा भाई ये बरेली भी। तो दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेली मुसलमानों, मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दुनिया में तशरीफ लाए, आप पैदा हो चुके। तो दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, आप तारीख का वरक पलटोगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाजे फजर के लिए अजान नहीं दिया, कभी नमाजे जोहर के लिए अजान नहीं दिया, कभी नमाजे असर के लिए अजान नहीं दिया, कभी नमाजे ईशा के लिए अजान नहीं दिया, कभी नमाजे मगरिब के लिए अजान नहीं दिया। मेरे आका बदर में गए, अजान नहीं दिया। आप वहद में गए, अजान नहीं दिया। आपने सफर किया, अजान नहीं दिया। अब मक्का से मदीना तशरीफ लाए, आपने अजान नहीं दिया। आप जो है महराज पे तशरीफ ले गए, आपने कभी अजान नहीं दिया। लेकिन जब फातिमा के घर में हुसैन आया है, तो मुस्तफा दरवाजे में तशरीफ ले जाते हैं और अपने गोद में ले करके हुसैन के कान में अजान। माशाअल्लाह, क्या बात है। इससे पता चलता है कि हुसैन कितने कीमती है, कितने आला है।
ہے کہ نہیں؟ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اب جب میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جب آپ چلنے کے لیے، جب آپ چلنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یعنی جب آپ ہر چیز کے قابل ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت کے آغوش میں پلنے لگے، آپ کے طور طریقے میں پلنے لگے۔ اب مصطفیٰ جیسے نماز پڑھتے حسین بھی ویسے ہی نماز پڑھتے، جیسے سجدہ کرتے حسین بھی ویسے ہی سجدہ کرتے، جیسے مصطفیٰ رکوع کرتے ویسے حسین بھی رکوع کرتے۔ جتنی دیر تک مدینے کے تاجدار سجدے میں رہتے، اتنی دیر تک امام حسین رہتے۔ یہ روزانہ کا دستور ہے۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، یہ روزانہ کا طریقہ ہو گیا۔ نانا کو دیکھ کر نواسا نماز پڑھتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج وہاں بھی پلے کہتے پھرتے ہیں کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز برباد ہو جائے گی، اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر گدھا بیل کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ ارے وہابیوں، دیوبندیوں، سلاکریوں، گدھا بیل والی نماز تمہیں مبارک ہو اور نبی والی نماز مجھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہیدان کربلا، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے جب امام حسین سجدہ کرتے رہے ہوں گے تو کیا سجدے میں حسین تھے؟ کیا امام حسین سجدے میں نبی کا خیال نہ کیا ہوگا؟ رکوع میں نہ کیا ہوگا؟ قیام میں نہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کہ نہ کیا ہوگا؟ اب بتاؤ، جب اتنے بڑے شہید کی نماز نہ قرآن ہو، نہیں ہوگا، ہوگی کبھی نہیں ہوگی نا؟ تو گدھے بیل والی نماز کس کو مبارک ہو؟ بولو بھائی، بولیے نا، آپ لوگ بھی بولیے، پورا مجمع بولے، اور نبی والی نماز کس کو مبارک ہو؟ کیا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ سبھی لوگ پڑھتے ہیں؟ اچھا، کتنے لوگ پڑھتے ہیں آپ اٹھائیں؟ پورا مجمع نمازی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا آفتاب عالم چشتی قادری صاحب کریں ماشاءاللہ، یعنی اگر امام مقتدی کے کاغذ پہ مہر لگا دے تو سمجھ لو کہ سب مقتدی جنتی، یعنی نمازی اگر نمازی تو جنتی۔ اور جو امام ہوتا ہے، یقین مانیے، جو جس محلے کا، جس مسجد کا امام ہوتا ہے وہ وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا میں جتنے نماز پڑھتے ہیں سب اس کے غلام، سب اس کے غلام ہوتے ہیں۔ اگر یقین نہ ہے تو دیکھ لو، جب امام سجدہ کرے گا تبھی مقتدی کریں گے، جب وہ رکوع کرے گا تبھی مقتدی کریں گے۔ اب مقتدیوں میں چاہیے جج ہو، کلکٹر ہو، کنسٹیبل ہو، 5 لاکھ روپیہ مہینہ کیوں نہ کمانے والا ہو، لیکن امام کا غلام ہے۔ جب وہ سجدہ کرے گا تبھی کرے گا، لیکن اگر سوچے کہ میں 5 لاکھ مہینہ کماتا ہوں، اسی کمرے میں رہتا ہوں، اسی گاڑی میں گھومتا ہوں، میں امام سے پہلے سجدہ کروں گا تو اس کی نماز بنا، یعنی وہ امام کے تابع ہے، امام کا غلام ہے۔ تو دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، ہم لوگ اماموں کی جب تک ہماری قوم اپنے اماموں کی قدر کرتی رہی تب تک ہماری قوم دنیا میں کامیاب رہی۔ جب ہماری قوم اپنے اماموں کی قدر بھول گئی، ہماری قوم ہماری برباد ہوتی چلی جا رہی۔ تو دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے گود میں اٹھایا، آذان دیا، اقامت کہی، اس کے بعد آپ نے ایک نعرہ لگایا، حسین زندہ باد۔ کیا بات ہے، سبحان اچھا یہ بتا، جو ہم لوگ حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں کس کی سنت ہے؟ میرے آقا کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ آقا کی سنت، آقا کی سنت ادا کریں گے
तो मेरे साथ आप भी कहिएगा, मदीने वाले आका ने हुसैन को गोद में उठाकर कहा हुसैन जिंदाबाद, अबू बकर ने देखकर कहा हुसैन जिंदाबाद, उमर ने देखकर कहा हुसैन जिंदाबाद, उस्मान गनी ने देखकर कहा हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद, तलहा ने देखकर कहा हुसैन जिंदाबाद, अली ने देखकर कहा हुसैन जिंदाबाद, जुबैर ने देखकर कहा हुसैन जिंदाबाद। अब मुझे कहने दिया जाए, खाली सहाबा की जमात नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात ने भी हुसैन जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाया। जिब्रील ने कहा हुसैन जिंदाबाद, मिकाइल ने कहा, बोलिए ना, मिकाइल पूरा मजमात उठा के मिकाइल ने कहा हुसैन जिंदाबाद, इस्राफील ने कहा हुसैन जिंदाबाद, इस्राइल ने कहा हुसैन जिंदाबाद, फरिश्तों ने कहा हुसैन जिंदाबाद, जन्नत की हूरों ने कहा हुसैन जिंदाबाद, हवा ने कहा हुसैन जिंदाबाद, दरिया ने कहा हुसैन जिंदाबाद, बाबा ने कहा हुसैन जिंदाबाद, मीरा ने कहा हुसैन जिंदाबाद, सफा मरवा ने कहा हुसैन जिंदाबाद, करबला ने कहा हुसैन जिंदाबाद। आज तक अल्लाह का कुरान कह रहा है हुसैन जिंदाबाद। जब हम लोग क्या ये बात कहते है, सुभान हैं अल्लाह। वहाबियों के मजमे में, देवबंदियों के पास, या अगर हमारी बात उनके पास जाती है, कहते देखो मौलाना कैसे बेवकूफ बना रहा है, कह रहा है हुसैन जिंदाबाद। अरे जिसकी गर्दन अलग हो गई हो, जिसका बाजू कट गया हो, जिसके बदन में 72 जख्म हो, वो जिंदा कैसे? जब वहाबी नबी को जिंदा नहीं मानता तो हुसैन को क्या जिंदा मानता? किसके सदके में इमाम हुसैन है कि नहीं? वहाबियों को जवाब दे, बोलो, दे दो, बोलो भाई। रिकॉर्ड करने वालों रिकॉर्ड करो, नोट करने वालों नोट करो, अपने दिल की तख्तियों में ये बसा कर ले जाओ, ए वहाबी देवबंदी सुलाकुल्लियों, ए नगमा वाले, बहुत दिन से सुन्नियों से मुनाजरा हुआ, किताब के हवाले पेश किए गए, पेज नंबर पेश किए गए, रुकू और सफा पेश किया गया, लेकिन आज किताब पेश न की जाएगी बल्कि किताब की तफसीर पेश। इसी यूपी का वाकया है। कहाँ का? इसी यूपी का वाकया है। हुसैन नहीं बल्कि हुसैन के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, इसी यूपी का वाकया है। शफीपुर का, उनका नाम शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन साहब, क्या बात है। बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े। आप लोग हो सकता है शफीपुर गए माशाल्लाह गए। जब आप जाइएगा तो मेरा सलाम अर्ज करिएगा, कहिएगा सरकार आपका बयान में सुन कर आया हूँ, जिसने सुनाया है उसके हक में दुआ फरमा दीजिए। दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, अगर वहाबी देवबंदियों सुलाकुल्लियों किताब की बात बताई जाती है तो हंस के टाल देते हो, इधर उधर के बहाने बताने लगते हो। अगर किसी भी वहाबी की माँ दूध पिलाई है तो शफीपुर चला जाए, आने जाने का किराया मेरी तरफ से। क्या बात है, बहुत अच्छे हुजूर, माशाअल्लाह। आने जाने का किराया मेरी तरफ से। अगर मेरी बात झूठी निकल जाए तो 5 लाख ले जाओ, 22 लाख की गाड़ी ले जाओ, और अगर बात सही निकल जाए जो बताने जा रहा हूँ, आना मौलाना आफ्ताब साहब के पास तौबा कर लेना। क्या बात है, बहुत अच्छे हुजूर। भाई अगर मैं ना रहूं, भाई वहाबी बहाना निकालता है। हो सकता है कि दिल में इरादा करे, आपस में मशवरा करे, या लोगों से कहे कि यार जो बयान किए थे वो तो बयान करके चले गए, जब वो कभी मिलेंगे तो देख लेंगे। अगर हम ना मिले, इनके पास आकर के तौबा कर लेना। मुझे नहीं मुँह आका, मुझे साल आदत के तौबा। कैसे? देखिए, शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह
अपने हुजरे से निकलते हैं अपनी छड़ी लेकर, सुनिएगा गौर से, ईमान ताजा हो जाएगा। छड़ी लेके निकलते हैं तो एक बुढ़िया एक कोने में बैठ के रो रही थी। इसी शफीपुर का वाकया। आप उसके पास तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद कहते हैं ओ बड़ी भी क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने का मतलब क्या है। बड़ी भी अर्ज करती है कि भोला शाह क्या बताओ, बड़ी मुश्किल से हमने चंद पैसे इकट्ठा की और पैसा इकट्ठा करने के बाद तेली के दुकान में जा करके हमने अपने मटकी में तेल खरीदा। तेल खरीद करके आई रही थी कि रास्ते में मेरी मटकी गिर गई जमीन में, अब पूरा तेल जमीन मेरी पी गई। भूलन शाह ने कहा फिर परेशानी की बात क्या है, जब बताओ तुम्हारा तेल कहाँ गिरा था, बोल दो सुभान अल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भूलन शाह, आप उस बड़ी बी के साथ चलते हैं। बड़ी बी की मटकी जहाँ गिर के फूट गई थी उसका तेल जमीन ने पी लिया था। भूलन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी छड़ी से यूं जमीन में दबाया और जमीन जिस तरह पानी का उबाल बाहर फेंकती है उसी तरह तेल का उबाल बाहर फेंकने लगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसी तरह तेल का उबाल बाहर फेंकने लगी। जब जमीन तेल बाहर निकालने लगी तो भोला शाह फरमाते हैं कि बड़ी भी तेल तेरा जितना था ले ले। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। कोई वहाबी ऐसा कर सकता है? देवबंदी बड़ा छोटा गोरा काला कनवा बहरा कर सकता है? बोलो भाई। अच्छा सबसे बड़ी बात ये समझ में नहीं आती है, मैं सफर कर रहा था 5-6 लोग वहाबी किस तरह होते जानते हैं, चेहरे से आदमी पहचान जाता है, इतना मकबूल चेहरा होता है उनका, चाहे जितने गोरे हो लेकिन बाखुदा की कसम सुन्नी चेहरा क्या बात है। वो किसी से ना बताए कि हम कौन हैं, लेकिन सुन्नी हर जोतने वाला, समझ रहे हैं, हल जोतने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाले से पूछो वो अल्लामा नहीं है, मुफ्ती नहीं है, कारी नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, मुफक्किर नहीं है, वली नहीं है, अगर उससे पूछो ये रिक्शा चलाने वाला ये बताओ वो कौन जा रहा है, एक बार देखिएगा कह देता है वहाबी जा रहा है। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे हुजूर माशाअल्लाह। कहता है वहाबी जा रहा है। यकीन मानिए एक बार मुझको बॉम्बे जाना था और मैं रामबाग से एक रिक्शा पकड़ करके रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तो रिक्शा वाले से मैंने कहा यार कि चौक के पास ले चलना, मुझे कुछ सामान लेना है। मैं अपने मुरीदों के यहाँ बॉम्बे जा रहा था, मैंने चौक से सामान खरीदा, मैंने कहा निकल चलो इसी नकाश करने की तरफ से, कहा ठीक है। निकला, जैसे निकला कुछ दूर मैंने आगे पहुंचा तो है ना, बोलो भाई है कि नहीं भाई, हमारे मस्जिद के बारे में इतनी 1000 लोग बोले हम नहीं देंगे, कहेंगे हाँ हमारी मस्जिद है, लेकिन उनको बताने में भी डर लगता है, वो कभी सुनिए से नहीं बताते कि हमारी मस्जिद है, क्योंकि सोचते कि भूले भटके ही आ जाएगा। सही है कि नहीं? नहीं सुन्नी अंतिम मस्जिद है। और वहाँ खुदा की कसम देखिए, कोरोना का जो मर्ज फैला था ना, जो वहाबी का वो भी दरवाजे में लिख रहा था कि मैं सुन्नी हूँ। क्या बात है भाई। एमपी में एक बुढ़ार इलाका है साडोल के पास, अब बुढ़ार के बैठे हुए जितने वहाँ के सड़े वहाबी बदबूदार सब अपने दरवाजे में लिख दिए थे सुन्नी बरेलवी, क्योंकि मालूम था कि नदवा वालों को उठा कि पिटाई की जा रही है, इन्हीं से कोरोना फैल रहा है। खुदा की कसम कहता हूँ इन्हीं से मर्ज भी फैलता है और ये अकीदे का कैंसर भी फैलता है। अगर पूरी दुनिया से वहाबियत खत्म हो जाए तो कभी आतंकवाद पैदा नहीं होगा। क्या बात है। आज जो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी है, कश्मीर में आतंकवादी है, तालिबान आतंकवादी है, बांग्लादेश में आतंकवादी है, दाढ़ी टोपी वाले को देख करके लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है। अरे वो कहने वालों, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ
बहुत अच्छे बात जितने भी आतंकवादी पाएंगे सब वहाबी। वाह क्या सुन्नी को आपने कभी सुना कि आतंकवादी है? कभी सुना? आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वहाबी अक्सर ये लादेन है, ये उसामा बिन लादेन है, ये फला जैश मोहम्मद है, ये तो फला है, ये तो फला है, ये तो फला है। अरे वहाबियों, अपने मुकद्दर पर रो, तुम्हारे पास आतंकवाद की मोहर है। अरे वहाबियों, अपनी मुकद्दर पर रो, तुम्हारी जमात में लादेन है, तुम्हारी जमात में जैश मोहम्मद है, हमारी जमात में तो गौसे आजम है, हमारी जमात में तो करीम नवाज है, हमारी जमात में इमाम अहमद रजा है, हमारी जमात में हुजूर मुनव्वर शाह है। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह है कि नहीं? सुभान अल्लाह क्या बात है। वहाबियों की जमात में किसी वली को आपने देखा कहीं भी टूटी फूटी बिखरी मजार कहीं आपको मिली है? बोलो भाई, कहीं नहीं ना। लेकिन खुदा की कसम, सुन्नियों की बाजार, सुन्नियों की बुजुर्गों की बाजार जहाँ देखो वही है कि नहीं? अब यहाँ से हिम्मतगंज आइए, हुजूर मुनव्वर शाह की दरगाह है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? आप दोस्तों बुजुर्गों सिमरी जन्नती बरेलवी मुसलमान और आगे फरीदगंज पहुंच जाइए, दादा मियाँ की मजार, और इधर मुड़ाइए तो अल्लामा अशकुर रहमान हबीबी की मजार। बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़े पाई के बुजुर्ग थे। यकीन मानिए अल्लामा अशकुर रहमान साहब की जात बहुत बड़ी थी। जो लोग जाग गए वो कामयाब हो गए। अच्छा, कुछ लोग इसलिए जानते हैं कि वली वो है जो औरतों जैसे बड़े बड़े बाल रखे, वली वो है जो 10-10, 20-20 अंगूठियां पहनता हो, वली वो है जो पानी में आग लगा देता है, वली वो है कि जो करामतें दिखा देता है। वो वली नहीं, वो तो जादूगर है। वली वो है कि जो शरीयत में अमल करे, वली वो है जो मुस्तफा की सुन्नत मुर्दा हो गई उसे जिंदा करे, वो वली। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, साहब ने अपनी छड़ी से जमीन की पसली पे दबा करके जमीन से तेल लेकर के बुढ़िया को दे दिया और कहा जाओ बड़ी भी जाओ, तुम्हारा काम हो गया। जब बड़ी भी जाने लगे तो शाह बोलन भी जाने लगे तो जमीन ने कहा, ए शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ बोलन शाह, सुन ले मेरी एक नसीहत, आज तूने मेरी पसली को तोड़ा है, मेरी हड्डी को तोड़ा है, मुझे चूर चूर किया है, मेरे जिस्म से तेल निचोड़ा है। कल जब तू मेरे अंदर आएगा, जब तू कब्र के अंदर आएगा, हम भी तेरी पसली तोड़ेंगे, हम भी तेरी हड्डी चूर करेंगे। शाह मोहम्मद भोले शाह को गुलाम हुसैन को जलाया गया। अरे कहा जा हमने बहुत देखा है, जा मैं तेरे अंदर आऊंगा। क्या बात है, बहुत अच्छे हुजूर माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा जा मैंने बहुत देखा है, तेरे अंदर मैं आऊंगा ही नहीं। आप सूरज जलाल में अपने घर तशरीफ लाते हैं और कहा कि ये मेरी बेटी, आपके पास एक बेटी थी, कहा मेरी बेटी जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे गुस्ल दिलवाना, मुझे कफन पहनवाना, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़वाना, लेकिन मेरे लिए कब्र में खुदवाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हुजूर। ए वहाबियों, क्या तुम्हारा भी कोई मौलवी है ऐसा? अगर तुम्हारा अकीदा है तो लाओ कोई ऐसा मौलवी जो बोले शाह की तरह। बोलो, किसी को ला दो, लंगड़ा ही उड़ा ला दो, अंधा ही करवा ला दो। चीन में सबसे बड़ी खराबी है, गोरा है वो भी कहता है मैं नबी की तरह हूँ, काला कलूटा हो तांबे की तरह वो भी कहता है मैं नबी की तरह हूँ, कनवा हो वो भी कहता है मैं नबी की तरह हूँ, अंधा हो वो भी कहता है मैं नबी की तरह हूँ, बहरा हो वो भी कहता है मैं नबी की तरह हूँ। हजरत 4-5 लोग ट्रेन में बैठे थे, एक तो आगे 3-4 दांत ही नहीं थे, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि क्या बताऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने खाना खाया तो अपना लोग उसकी तरफ से फेर लिया कि कहीं ऐसा न हो कि जो अंदर जा रहा है वो बाहर आ जाए। इतना खराब चेहरा दिख रहा था और कुछ दूर चलते चलते कहने लगा नबी मेरी तरह है। मैंने कहा माज़अल्लाह जरा देखो। मैं कहा अगर तेरी माँ दूध पिलाई है चल मेरे साथ थाने में, जो दरोगा कुर्सी में बैठा है सिर्फ तू इतना कह देना कि ये दरोगा मेरी तरह है।
वाह वाह क्या बात है जरा बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे कह के दिखा दे कि दरोगा मेरी तरह है। कसम खुदा की इतनी पिटाई करता हूँ, कहता था खोबड़ा काला कलूटा गंदा मैला कुचैला, तुम कहता है कि मैं दरोगा की तरह हूँ, पीट पाट के जेल में डाल देता। अरे जब तू दुनिया में किसी थाने के पास जाके अगर ये कह दे कि ये दरोगा मैं तेरी तरह हूँ, तो थाने का दरोगा पीट पाट के तेरी चर्बी उधेड़ करके तुझे जेल में डाल दे। तू सोच, जब तू ये कहता है कि मैं नबी की तरह हूँ, तो खुदा की कसम महशर के मैदान में यूं पैर तेरे ऊपर चलेंगे, यूं लाठी डंडा बरसेंगे, तेरी चर्बी पिघल जाएगी, फरिश्ते यूं मुक्का मारेंगे, यूं डंडा मारेंगे, यूं जहन्नम का कोड़ा मारेंगे, घसीट घसीट के। ए बेकाला तू कहता था नबी की तरह है, ए बेकलवा तू कहता था नबी की तरह है, ए बेबहरा तू कहता था नबी की तरह, फिर वहाँ कहेगा हाय 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 हाय, तो मुस्तफा कहेंगे बाय 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 बाय। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाले आला हजरत, फैजाले आला हजरत, फैजाले हुजूर ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म के दरिया फैज के दरिया, हुजूर हफीज मिल्लत, शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलंद साहब ने कहा बेटी का मेरा इंतकाल हुआ है, मेरी एक वसीयत, मुझे कफन पहनवाना, मेरी नमाज जनाजा पढ़वाना और मेरे लिए कब्र न तैयार करवाना। मेरे बाबा ये मेरी बस की बात नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है, नियम है, कानून है, ये हमारी बिरादरी का तरीका है कि जब कोई किसी मोमिन का इंतकाल होता है तो उसके लिए कब्र तैयार करवाई जाती है। और आप कहते हैं कब्र ना तैयार करवाए, अगर कब्र तैयार न की जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? ये मेरी बस की बात नहीं है, ये आपका काम है, आप ही देखिए। अच्छा ठीक है, वहाँ भी कहता है ना, बाजू कट गया, गर्दन कट गई, सांसें रुक गई, फिर भी ये कहते हैं हुसैन जिंदाबाद। क्या बात है, कहते हैं हुसैन जिंदाबाद, गली गली में हुसैन जिंदाबाद। खुदा की कसम जब मुहर्रम का महीना आता है ना, गली गली में हुसैन जिंदाबाद, शहर शहर में हुसैन जिंदाबाद, घर घर में हुसैन जिंदाबाद, मकान मकान में हुसैन जिंदाबाद, मदरसे मदरसे में हुसैन जिंदाबाद, इबादत गाहों में हुसैन जिंदाबाद, गली कूचे में हुसैन जिंदाबाद, यूपी में हुसैन जिंदाबाद, एमपी में हुसैन जिंदाबाद, महाराष्ट्र में हुसैन जिंदाबाद, कर्नाटका में हुसैन जिंदाबाद। दोस्तों बुजुर्गों सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, बंगाल में हुसैन जिंदाबाद, उड़ीसा में हुसैन जिंदाबाद, नेपाल में हुसैन जिंदाबाद, पूरे हिंदुस्तान की गली गली कूचा कूचा नगर नगर बस्ती बस्ती करिया करिया में हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद का नारा लगता है। खाली हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हुसैन जिंदाबाद, रेगिस्तान में हुसैन जिंदाबाद, तालिबान में हुसैन जिंदाबाद, बांग्लादेश में हुसैन जिंदाबाद, हॉलैंड में हुसैन जिंदाबाद, फिजी में हुसैन जिंदाबाद, और वहाबियों के बाद के घर में सऊदीया में भी हुसैन। वहाँ भी हुसैन जिंदाबाद का नारा लगता है। दोस्तों बुजुर्गों सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, अब देखिए कुछ दिनों के बाद भोला शाह की तबीयत नाशाद हुई, आप इंतकाल कर गए। आपके मुरीद तशरीफ लाते हैं, खूब आपकी नमाज जनाजा में भीड़ हुई। आज के मुरीद नमाज अदा करते हैं, कफन पहनाते हैं, नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद आपकी कब्र खोदी गई, घर से कुछ दूर ही पर, और उस कब्र के करीब आपको ले जाया जाता है। जैसे भोला शाह को आज के मुरीदों ने कब्र में उतारा, भोला शाह अपने आप उठ के कब्र के बाहर, ए वहाबियों मेरा चैलेंज है, दुनिया में तुम्हारे जितने भी मौलवी हो, चाहे नगवा का हो, चाहे खाना भवन का हो, चाहे सहारनपुर का हो, चाहे दिल्ली का हो, और चाहे सऊदीया का हो, हिंदुस्तान से लेकर सऊदीया तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जितने भी तुम्हारे बदमुल्ले, दिल जले, यकीदे के लकबे को, जितने भी मौलवी
नहीं हुजूर नहीं, क्या बात है, बोलो भाई, उठा हाथ उठा के बोलो, क्या उठा? नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? इसलिए इनका यकीदा सड़ा है। जिसका यकीदा सड़ा हो कभी उठेगा? बताओ, जिसका दोनों पैर हाथ टूट जाए वो कभी उठेगा? जिसका यकीदा सड़ा हो कभी खबर में उठेगा? बोलो उठेगा? कभी नहीं उठेगा। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, फिर मुरीदों ने उठा करके कब्र में फिर लेटाया। कहा सरकार आराम करिए ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? फिर बोले साले का बाहर आ गए। सारे मुरीद हैरान। अब्दुल कादिर साहब कितना परेशान। फिर बोले साकी लाश को बगल में उठाते हैं। उठाने के बाद फिर कब्र में लेटाते हैं। जैसे कब्र में लेटाया, लेटाने के बाद मुरीद बाहर निकलते, फिर बोले साले का बाहर आ गए। इसी तरह वो कई बार करते रहे। मुरीद हैरानो परेशान होकर बोले ऐसा करते हैं, चलते हैं पीर साहब के घर में। पीर साहब की बेटी से बताते हैं कि आज आपके अब्बा ने बड़ा गजब कर दिया। आज आपके अब्बा ने बड़ा गजब कर दिया। अब चंद मुरीद जो है गोरन साहब के घर तशरीफ लाते हैं। शफीक का वाकया है। तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद कहा, ए मेरे पीर मुर्शिद की शहजादी, आज आपके अब्बा ने तो गजब कर दिया। कहा क्या? कहा वो कब्र में लेटने के लिए तैयार ही नहीं है, कब्र में आराम करने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे हम लोग कब्र में लेटाते हैं तो फौरन बाहर आ जाते हैं, फिर लेटाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं, फिर लेटाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। बेटी ने जवाब दिया कि मेरे बाप के गुलामों, अगर क़यामत तक लेटाते रहोगे तो ना लेटा पाओगे, क्योंकि ये मेरे बाप की वसीयत थी। वाह क्या बात है। कि मेरे लिए कब्र ना तैयार करना, बल्कि मैं जिस चारपाई में लेटता था उसी चारपाई में मुझे लेटा देना। जिस कमरे में मैं सोता था उसी कमरे में मेरी चारपाई को रख देना। ए वहाँ भी अगर तुम भटक गए हो, उनकी ज़कात देकर या उनका हलवा दे करके या उनकी बिरयानी दे करके या उनकी दौलत दे करके, ये गुलामे रजा बरेली शरीफ का कुत्ता तुम्हें दावत देता है कि अभी भी वक्त है, बरेली चला जा, रजा की चौखट पकड़ कि मैं मुजरिम हुआ था, मुझे रास्ते में है जावजा जाने वाले। खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं, हम गाली ना देंगे, हम बरेली वाले हैं, बुरा ना कहेंगे, हम बरेली वाले हैं, भगाएंगे नहीं, हम बरेली वाले हैं, हटाएंगे नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि सुबह का गोला है, शाम को आया है, भगाया ना जाएगा बल्कि दिल से लगाया। और वहाबियों को दावत है कि 550 साल हो गया, अभी भी बुलंद साहब अपने कान के साथ, आँख के साथ, नाक के साथ, दांत के साथ, हाथ के साथ, सीने के साथ, पैर के साथ, हाथ के साथ अपने मकान में सलामत है, अपनी चारपाई में लेटे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हुजूर, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान कितने अल्लाह, साल हो गए? सुभान अल्लाह। बोलो भैया, कितने साल? 550 साल। 1 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, 550 साल से वो अपने चारपाई में आराम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अब न सुधरोगे तो कब सुधरोगे? वाह क्या बात है हुजूर, वाह। अब ना मानोगे तो कब मानोगे? अभी भी वक्त है, बुजुर्गों से मोहब्बत करो और तुम भी मुहर्रम की महफिल सजाओ। खुदा की कसम अगर वो कल सजा ले तो मैं अगर वो रुक जाए, अगर वो सजा ले तो मैं रुक जाऊंगा, वरना मैं खाली नहीं जाऊंगा। महीनों महीनों सफर में रहते, कहीं दिल्ली, कहीं हैदराबाद, तो कहीं कहीं तो कहीं कहीं
पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाते रहते हैं, मसलके आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत करते रहते हैं। और मैं अपने आप को हमेशा यही कहता हूँ कि मैं बरेली का कुत्ता हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, जो बरेली का कुत्ता होता है ना, वो दुनिया में शेर होगा और महशर के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत के हाथों से कौसर पिएगा। ये सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, आज तुम कहते हो ये मौलवी लोगों की बात है, ये पीर लोगों की बात है, ये इमाम लोगों की बात है, ये मौलाना लोगों की बात है, ये लोग तो बयान करके चले जाते हैं, लेकिन इस झंझट में हमें नहीं पड़ना चाहिए। जैसे सुबह अपने घर से निकलते हो, किसी बदबूदार वहाबी को देखते हो, फिर आए दाएं बाएं देखते हो कि कहीं इमाम साहब तो नहीं आ रहे, कहीं मुतवल्ली साहब तो नहीं आ रहे, कहीं कमेटी वाले तो नहीं देख रहे, फौरन सलाम कर लेते हो। सफर करते हो, होटलों में उसके साथ बैठ के कप सड़ाके के साथ बिरयानी खा लेते हो, अपनी बेटियां उसके यहाँ दे देते हो, उसकी बेटी अपने यहाँ ले लेते हो। वो सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, आज से दिल में ये अहद कर ले कि अगर वहाबी, देवबंदी, ज़िलाकुल्ली, राफ़िदी, कादियानी, जकड़ालवी, गांधी, मोहम्मदी, बरेली शरीफ के जितने भी दुश्मन हैं, बागी हुसैन है, यजीद की औलाद है, नाम आज से उनके यहाँ अपने बेटी का रिश्ता करेंगे। आज उठा के बोलो, क्या रिश्ता करोगे? क्या खाना खाओगे? क्या पानी पियोगे? क्या सलाम करोगे? क्या उनके यहाँ जाओगे? क्या उनको अपने यहाँ आने दोगे? क्या उनके साथ में नमाज पढ़ोगे? नहीं बोलो, क्या उनके साथ में नमाज पढ़ोगे? नहीं। कभी नहीं, क्योंकि जो गद्दारे हुसैन है उसके साथ कोई समझौता नहीं, ना उसके साथ में नमाज पढ़ेंगे ना अपने साथ में पढ़ने देंगे, क्योंकि हम हुसैन की रविश पे चलते हैं, हुसैन के तरीके पे चलते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, एक तरफ 72 का नगमा था, एक तरफ कई हजार का लश्कर था, इधर भी अजान, उधर भी अजान, इधर भी कलमा, उधर भी कलमा, इधर भी तिलावत, उधर भी तिलावत। लेकिन जब फजर का वक्त आता ना, तो जमात अलग अलग, मुसल्ला अलग अलग, सब अलग अलग, अज़ानें अलग अलग। मैंने आका हुसैन से पूछा कि मेरे आका हुसैन, बड़ी जमात में चले जाते ज्यादा सवाब मिलता, बड़ी तादाद में चले जाते ज्यादा सवाब मिलता। इमाम हुसैन के गुंबद से आवाज आई कि बरेली का कुत्ता, तादाद देख के मत जा, कसरत देख के मत जा, लश्कर देख के मत जा, अगर जाना है ईमान देख के जा, अकीदा देख के जा, वफादारी देख के जा, शरीयत देख के जा, मुस्तफा की मोहब्बत। समझ गए? जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है वही ईमान वाला है। दोस्तों बुजुर्गों, जन्नती बरेलवी मुसलमानों, बस चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद माइक से मैं रुखसत हो जाऊंगा, यानी दुनिया से नहीं, माइक से रुखसत हो जाऊंगा। सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, करिया करिया में, बस्ती बस्ती में, शहर शहर में, नगर नगर में, जब मुहर्रम का महीना आता है, हमारे भूले भटके नौजवान ढोल बजाते नजर आते हैं, ताशा बजाते नजर आते हैं, उछल कूद करते नजर आते हैं, मातम करते नजर आते हैं, सीना कुटी करते नजर आते हैं, और ताजिया निकालते हुए नजर आते हैं। कहीं बड़की ताजिया, तो कहीं छोटकी ताजिया, तो कहीं लाल ताजिया, तो कहीं पीली ताजिया, तो कहीं चांदी की ताजिया, तो कहीं लकड़ी की ताजिया, तो कहीं कहीं जो है थर्माकोल की ताजिया, तरह तरह की ताजिया निकाल करके उस ताजिया को मस्त कराते हैं। गली गली, नगर नगर, नगर नगर, शहर शहर, फिर 12 बजे रात में उसका नौमी मुहर्रम को मिलान कराते हैं। मिलान कराने कहीं कहीं तो ये कहा जाता है बड़की ताजिया जीत गई, छुटकी ताजिया हार गई, कभी ये कहा जाता है छुटकी हार गई, तो कभी ये कहा जाता है बड़की हार गई। और मेरा चैलेंज है, जहाँ जहाँ ताजिया निकाला जाता है वहाँ वहाँ ताजिया के लिए लोग चौक बनाते हैं, जहाँ जहाँ ताजिया निकाला जाता है वहाँ लोग ताजिया के लिए करबला बनाते हैं। सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, हम सुन्नियों का काबा एक है, हम सुन्नियों का कलमा एक है, हम सुन्नियों का कुरान एक है, इसी तरह हम सुन्नियों का करबला भी
नहीं, चकिया का करबला अलग, बरेली का करबला अलग, गुदरियाबाद का करबला अलग, चौक का करबला अलग, तो फलाने जगह का करबला अलग। अरे ना जानो कितने करबला बनाओगे? करबला बनाना कोई आसान बात नहीं है। अरे करबला बनाना, जरा हुसैन से पूछो क्या परेशानी आती है करबला बनाने में, जैनब से पूछो क्या परेशानी आती है करबला बनाने में, अब्बास से पूछो करबला बनाने में क्या परेशानी आती है। तू सोचता है लाल ताजिया, चुटकी ताजिया, बड़की ताजिया बना करके हम करबला बना देंगे? ऐसा करबला बनाना हराम हराम, असद हराम है। ऐसी जगहों पे जाना हराम, फातिया दिलाना हराम, मन्नतें मांगना हराम, चादरें पेश करना हराम, उस जगह जा करके उसकी ताजीम भी करना हराम। पहली बात नोट करें, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, नोट करने वाले नोट करें। जो माई कलाल गलत साबित करते 5 लाख का उसको भी ना। याद हमारे भाइयों में सियाओं का तरीका आ गया है, ठीक हमारे भाई नहीं जानते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मोरो वजह ताजिया दारी है। अगर हम बरेलवी हैं, अगर सुन्नी है किस बात को माने। हाँ ये भी बयान करूंगा, आज लोग इतना बयान करके गुजर जाते हैं कि ताजिया हराम है, हराम बता के चले जाते हैं, लेकिन कादरी ये कहता है कि मोरो वजह ताजिया दारी हराम है, लेकिन असल ताजिया जायज है। जिस ताजिया को बरेली के ताजुल शरिया ने देखा है, जिस ताजिया को आला हजरत का बेटा मुफ्ती इलाही ने देखा है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो ताजिया बॉम्बे के सरजमीन में, चांदी की ताजिया एक जगह बना के रख दी जाती, असली ताजिया यानी हूबहू इमाम हुसैन का टुकड़ा चाहिए, हूबहू। अच्छा लोग कहते ताजिया, ताजिया निस्बत है, निस्बत निस्बत है, निस्बत लोग बताते हैं कि हम लोग निस्बत से निकाल रहे हैं इमाम हुसैन। अच्छा ये बताओ 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं? चलो ताजिया के बारे में हम लोग बयान करते हैं, लोग कहते हैं मुल्ला मौलवी हराम 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 के अलावा कुछ जानते हैं? खुदा खुदा की कसम हम लोग इमाम हुसैन के आशिक गुलाम हैं। सुन्नियों ताजिया निकालते हो तो ताजिया से पहले करबला मिटाओ, ताजिया से पहले चौक मिटाओ, फिर एक नई तारीख बनाओ। जिस तरह इमाम हुसैन की मज़ार है तुम्हारा शरीर उसी तरह बना के रखो ना। किसी मुफ्ती के अंदर ताकत नहीं कह दे कि ये हराम है, बल्कि देखेगा तो ऐसे करके रहेगा। जो आज ऐसे करके चले जाते हैं ना, खुदा की कसम फिर ऐसे करके नहीं बल्कि ऐसे करके जाएगा। रोज़े हुसैन ऐसी ताजिया बनाना सवाब, छूना सवाब, रखना सवाब, इसमें चंदा देना सवाब, लेकिन मोरो वजह ताजिया दारी में चंदा देना हराम। ताजिया ऐसी ताजिया बनाना हराम, ऐसी ताजिया में शरीक होना हराम, ऐसी ताजिया में जो लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ये सब के सब गलत, शरीयत के खिलाफ। दोस्तों जन्नती बरेली 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं ना, 12 रबीउल अव्वल में क्या मनाते हैं बताओ भाई, क्या बनाते हैं? रोज़े मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते नहीं बनाते? काबा शरीफ बनाते नहीं? अब बताओ कोई लाल किला बना ले, ताज महल बना ले 12 रबीउल अव्वल शरीफ में और कहे सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, लोग उससे पूछेंगे क्या निकाले हो तो कहेगा नहीं 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस। तो लोग कहीं सकिया गया, पगला गया, तेरी दिमाग खराब हो गई, लाल किला बनाया है, ताजमहल बनाया और कहे सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। अगर रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकालना ही है तो गुंबदे खजरा बना। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हुजूर। अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस बनाना है तो गुंबदे खजरा बना, काबा बना। ये बरेली का कुत्ता कहता है ए सुन्नियों, अगर आका हुसैन से मोहब्बत है, अगर ताजिया बनाना ही है तो रोज़े हुसैन बना। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसी बना तो जाएंगे, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है, समझ गए? तो दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेली मुसलमान हो गया।
مجھے بہت وقت کم ملا، ورنہ میں اور آگے بیان کرتا کربلا شریف کے بارے میں. کبھی اس گناہگار فقیر قادری کو اگر آپ نے یاد کیا تو انشاءاللہ یہ بریلی کا کتا ضرور حاضر ہوگا. مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے اللہ جل شانہ سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ سب کو شریعت کے قائم رکھے، اور جتنے بھی وہابی سنا کلی رافضی قادیانی چکڑالوی گاندھی محمدی بریلی شریف کے ٹوٹے پھوٹے سڑے گڑے ظالم دشمن ہیں، اللہ اسے دشمنوں سے دور رکھے اور مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قائم اور دائم رکھے. آقا حسین سے سچی پکی اچھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نمازی پرہیزگار بنائے. مولا یہاں جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور جو کمیٹی مل کر کے اس محفل پاک کو سجایا مولا اس کمیٹی میں چار چاند لگا دے، ان کمیٹی والوں کو دینی دنیاوی دولتوں سے مالا مال کر دے، تاکہ اور اچھے انداز میں اور بہتر طریقے سے سرکار امام حسین کی محفل پاک سجائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام.